Hello, dear students and parents. How are you? I hope you will be fine. So, dear students and parents, today I am making this video in order to learn spoken. Yes, you heard right, in order to learn spoken. So, first of all, I would like to say one thing. Don't consider me as a teacher and as a fluent speaker. I am not a teacher and I am not a fluent speaker. Then who I am? I am a facilitator and I am a learner. Why I am a facilitator? Because whatever I know, I always try to serve that concept and knowledge in easiest way. That's why I am a facilitator. And I am a learner because you know very well learning never ends, and you know very well in this universe each and every people have a different perspective. So my perspective is that in this universe nothing is complete its own existence. Each and everything have to need improve for next level. So just I am improving my level. And to be honestly, I'm telling you, I still make a mistake during conversation, but I never consider these mistakes as a mistake because I always consider this is the part of learning. For example, if a person never make any mistake, so then how can you say that person learned something? He didn't learn anything. So today we have a special talk to on 3 or 4 points in order to learn spoken. So as you know very well, just I open my own coaching institute. So it is situated in Navatera, and this area consider as a rural area. So rural people and student have lots of myth about spoken. So just I want to give a clarification on all that myths. Okay. And you know very well I also run my own YouTube channel. That name is also LTF classes, and my YouTube and coaching slogan is learn together to lead tomorrow. So just I want to start a spoken batch in my coaching institute. That's why I'm here. But this region people have lots of myth. So first myth is that this area people consider my student and I live in a village, and my student is studying in a government college or UP board college. That's why we can't learn spoken. So I'm asking you one question. Did you recognize me, who I am? If you recognized me, then I may be your friend, I may be your brother, I may be your younger brother and older brother, I may be your neighbor, and I may be your colleague, and I also live in village. And to be honestly, I also did my schooling in private or primary school. If I can learn spoken, then why you can't learn spoken? So I'm telling you, don't think like that. You can learn spoken, trust me. थोड़ा हिंदी में भी बोल लेते, नहीं तो कुछ लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इतनी अंग्रेजी क्यों, आगे समझ गए होंगे कि आप बोलेंगे, है ना। तो अब मैं बता देना चाहता हूँ, बहुत ही आसान है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूँ ना कि आपको बताइए आपको हिंदी किसने सिखाई, हिंदी तो आप अच्छी बोलते हैं ना, तो आपका जवाब यही होगा किसी ने नहीं। आपने किससे सीखी है? इमिटेशन से सीखी है, एक्वायर किया हिंदी को। तो वैसे इंग्लिश भी सीख सकते हैं ना। बहुत सारे लोग सजेस्ट करेंगे आपको कि आपको ग्रामर बहुत अच्छा आना चाहिए तभी आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आपको बेसिक ग्रामर आना चाहिए। बहुत सारे लोग आप लोगों ने देखे होंगे जिन्हें ग्रामर का कुछ भी नहीं आता है, इवन वो इतना फ्लुएंट बोलते हैं, है ना। और बहुत सारे लोगों को ग्रामर पूरा रटा पड़ा है, लेकिन दे आर नॉट कंफर्टेबल टू टॉक इन इंग्लिश। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अब दूसरी जो एक तो मिथ ये कंप्लीट हो गया है ना। तो दूसरी बात है, तो लोग स्टूडेंट ये सोचते हैं कि अगर मुझे स्पोकन सीखनी है तो सीखनी क्यों चाहिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो देखिए, अगर आपको अंग्रेजी
सीखना क्यों चाहिए, इस चीज़ पे डाउट है ना, तो मैं बता देता हूँ क्यों सीखना चाहिए। देखिए, आज के ज़माने में अगर कोई गवर्नमेंट वैकेंसी का कोई एडवर्टीजमेंट रिलीज होता है, तो अगर जैसे 2000 वैकेंसी का हुआ तो उसमें 2 लाख फॉर्म पड़ते हैं। अब 2 लाख को तो जॉब मिल नहीं जाएगी गवर्नमेंट, है ना। मिलेगी कितने को? 2000 को मिलेगी। बाकी सब लोग क्या करेंगे? जीविकोपार्जन के लिए तो कुछ तो करना ही पड़ेगा भाई, प्राइवेट जॉब करनी पड़ेगी। तो अगर आपके पास प्राइवेट सेक्टर में 100% अपॉर्चुनिटी है और आपको स्पोकन नहीं आती है, तो वो 40% सप्रेस्ड हो जाती है विदाउट स्पोकन के लिए। अगर वो आप सीखें तो आपके पास 100% अपॉर्चुनिटी रहेगी। बाकी अगर मैं बात करूं करियर की, तो आप करियर बना सकते हैं। अगर आपको स्पोकन आती है तो आप आईटी सेक्टर में जा सकते हैं, आप कॉल सेंटर में अपना करियर बना सकते हैं, आप किसी भी ट्रैवल डेस्टिनेशन पे, और मैं कह सकता हूँ किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस और मॉन्यूमेंट्स पे एज अ गाइडर आप अपना करियर बना सकते हैं। बहुत सारी, देखिए ये 21st सेंचुरी है, दिस इज़ द टाइम ऑफ ग्लोबलाइजेशन, दिस इज़ द टाइम ऑफ डिजिटलाइजेशन, है ना। तो इसमें अगर आप किसी भी चीज़ को ग्लोबलाइज्ड करना चाहते हैं, है ना, आप कहीं नहीं तो आप अगर ट्रैवल करना चाहते हैं, बाहर घूमना चाहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स एंड कंट्रीज़ के जो ट्रेडिशंस हैं उनसे आप परिचित होना चाहते हैं, तो इंग्लिश मस्ट, बिना इंग्लिश के आप कुछ नहीं कर सकते। इवन आज के दौर में तो आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में अगर इंटरव्यू फेस करने जाते हैं तो इंटरव्यू वही इंग्लिश में ही होता है ना। और कहीं ना कहीं ये आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी बहुत हेल्प करेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर देखा जाए, अगर किसी बच्चे से इतना भी अगर पूछ लो कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो कहीं ना कहीं उसकी हवा निकल जाती, कुछ भी नहीं बता पाता है। तो हमें थोड़ी बहुत तो अंग्रेजी आनी चाहिए, है ना। तो हम जो बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं जैसे एकदम इनरोल हो जाइए, और विश्वास रखिए आप लोग एकदम अच्छे से अंग्रेजी सीख जाएंगे। जैसे कि अपने कोचिंग की टैग लाइन है और स्लोगन है, लर्न टुगेदर टू लीड टुमारो, साथ साथ सीखेंगे कल बढ़ने के लिए, है ना। तो और फीस के बारे में बिल्कुल बेफिक्र रहिए, फीस मिनिमम से मिनिमम रहेगी, है ना। तो जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं जल्दी से जल्दी आप लोग एनरोल हो जाइए। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।